ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان 3 روز سے جاری رہنے والے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان 3 روز سے مذاکرات جاری تھے، اب بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں۔ ثالث ممالک کی جانب سے فریقین کو دوبارہ مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ترکی کے شہر استنبول میں پیر کو مذاکرات کا تیسرا دور بھی مشکلات کا شکار رہا، کیونکہ اسی میں کسی پیش رفت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان ہفتے کو شروع ہونے والے ان مذاکرات کا مقصد طویل المدتی امن قائم کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں پاکستان اپنے پیش کردہ منطقی مطالبات پر قائم ہے، تاہم افغان طالبان کا وفد پاکستانی مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستانی وفد کا موقف بدستور منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر ہے۔ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغان طالبان کا وفد خود بھی سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ افغان طالبان کے وفد کو کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نقطہ واضح کیا کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے، جبکہ میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہ بات سمجھائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے بے حد خوشی ہوئی۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ ملاقات میں تجارتی، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ دونوں ممالک نے برادرانہ تعلقات کی دیر پا مضبوطی کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کا غیر متزلزل حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ سعودی ولی عہد کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے دونوں ممالک اور عوام کے درمیان گہری شراکت داری اور خوشحالی کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ بلوچستان میں اقلیتوں کی سماجی اور معاشرتی ترقی کے لیے پیپلز مینارٹی کارڈ کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اقلیتوں سے متعلق مشاورتی نشست کی، جس میں پارلیمانی سیکریٹری اقلیتی امور سنجے کمار، چیف سیکریٹری بلوچستان شکیل قادر خان، پرنسپل سیکریٹری سمیت متعلقہ حکام شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران بلوچستان میں اقلیتوں کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے پیپلز مینارٹی کارڈ کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا۔ پروگرام کے مؤثر نفاذ کے لیے رواں مالی سال مینارٹی انڈومنٹ فنڈ کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ آئندہ مالی سال مینارٹی انڈومنٹ فنڈ کے تحت پروگرام کا بجٹ 1 ارب روپے تک بڑھایا جائے گا۔ پیپلز مینارٹی کارڈ کے ذریعے اقلیتوں کو صحت، تعلیم، روزگار اور کاروبار میں سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے تحفظ، حقوق کا تحفظ اور ان کی بہبود حکومت بلوچستان کی اولین ترجیح ہے۔ پروگرام کے تحت اقلیتی برادری کے لیے معاونت کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ مینارٹی انڈومنٹ فنڈ کے شفاف اور مؤثر استعمال کے لیے جدید ڈیجیٹل مانیٹرنگ نظام متعارف کروایا جائے گا۔ اقلیتی رہنماؤں کی مشاورت سے پروگرام کی تفصیلات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ پیپلز مینارٹی کارڈ بلوچستان میں سماجی مساوات اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کا عملی مظہر ثابت ہوگا۔ بلوچستان میں اقلیتوں کی ترقی اور خوشحالی سے صوبے کی مجموعی سماجی ہم آہنگی مزید مستحکم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہم ایک ریاست دو دستور کا کلچر ختم کرنے آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہماری جدوجہد حقیقی آزادی اور قانون کی بالادستی کی تحریک ہے، جس میں وکلا برادری کا مرکزی کردار ہے۔ صوبے کی بار ایسوسی ایشنز کے لیے 42 کروڑ روپے کے گرانٹس منظور ہو چکے ہیں، جو چند دنوں میں فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین اور قانون کو مکڑی کا جالا نہیں بننے دینا، جس میں کمزور پھنس جائے اور طاقتور نکل جائے۔ آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ہم نے طاقتور اور ناانصافی کرنے والوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے۔ سہیل آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کے عدالتی احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ ہماری جدوجہد عدلیہ کی آزادی، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور میڈیا کی آزادی کے لیے ہے۔ کراچی کے سول اسپتال کی ابتر حالت نے انتظامیہ کی کارکردگی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ شہر کے دوسرے بڑے سرکاری اسپتال میں ڈاکٹرز اور ادویات کی شدید کمی کے باعث مریضوں کے لواحقین اپنے پیاروں کا علاج نرسوں سے کروانے پر مجبور ہیں۔ اسپتال میں ادویات کے ساتھ ساتھ اسٹریچرز کی بھی شدید قلت ہے۔ مریض اور ان کے اہل خانہ حکومت سے مدد کی اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سول اسپتال کے باہر موجود ہمارے نمائندے ثاقب خانزادہ سے۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس ہم کراچی سول اسپتال میں شعبہ حادثات کے باہر موجود ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایمبولینس تو نظر آ رہی ہے، لیکن اسٹریچر کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اسی حوالے سے مریضوں کے لواحقین کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔
कुछ सहूलत महूलत नहीं है, अंदर भी हम लोग को नहीं छोड़ता है, सही है ना। अंदर जाते हैं उधर वो बहुत चौकीदारें भी नखरे करते हैं, अंदर नहीं छोड़ते हैं। इलाज मिलाज इधर सही भी नहीं हो रहा है, हम 2-3 चक्कर गया अंदर निकल गया है, सही है ना। खाली 2 गोलियां लिख के हमने उधर खाया है बस, सही है ना। इधर कुछ दवाई मवाई नहीं मिल। हम यहाँ अभी अपने मरीज़ से मिलने के लिए आए थे, अभी इधर कुछ सहूलत भी नहीं है, ना पानी का ना कोई हमारे इंतज़ामियत का, क्योंकि हम अपने मरीज़ के लिए कोई डॉक्टर साहब से कोई हाल वाल करते हैं, वो कहता है इधर से पर्ची उठाओ उधर बनाओ, इधर से उधर हम धक्के धक्के खा रहे हैं। ये क्या मसला है हमारे गरीबों का, सही ना। हम जो यहाँ आए हैं अब यानी कि कुछ उम्मीद लेके आए हैं अपने मरीज़ को, यानी कि इधर हमारा कुछ सहूलत मिल जाए ना। सहूलत महूलत कुछ नहीं है, पानी मानी ना मिलता है, ना जगह है बैठने का, अंदर भी नहीं छोड़ते हैं। अंदर जाओ, पानी का मसला, चार्ज का मसला, हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ सहूलत का निज़ाम भी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि मरीजों का क्या कहना था, वो हुकूमत को दवाइयाँ देते हुए नजर आए। उनका यही कहना था कि सिंध के सबसे बड़े अस्पताल में ना सिर्फ सूबा सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि तरजीह बुनियाद पर, यहाँ पे हंगामी बुनियाद पर इकदाम लेने चाहिए ताकि मरीज़ों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, ताकि वो अपने प्यारों के साथ यहाँ पे जल्द से जल्द सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट जाएँ। जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब खुद खातून हैं, कमसिन बच्चियों और उनकी वालिदा के अगवा का मामला ज़रूर देखें। खातून वज़ीर आला के होते हुए पुलिस ने चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया, बच्चों को थाने बंद कर दिया। लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और उनकी वालिदा के अगवा के बाद उसी फैमिली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस एहलकारों के बज़ाहिर अगवा, ज़बरदस्ती घरों में दाखिले, डकैती और झूठे मुकदमात बनाने में मुलव्वस होने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को कमसिन बच्चों की वालिदा का बयान कलम बंद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। पंजाब पुलिस का बच्चों के अगवा में मुलव्वस होने का मामला वज़ीर आला और आईजी पंजाब को भेजने का इंदिया दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब खुद खातून है, वो मुताज़ा खातून और बच्चियों के अगवा का मामला ज़रूर देखें। डायरेक्टर क्राइमर FIA पुलिस एहलकारों के अगवा में मुलव्वस होने की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दें। रिपोर्ट जमा होने के बाद FIA इस केस की तफ्तीश करेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI उनके अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने दोनों की जमानत कबल गिरफ्तारी में 25 नवंबर तक तौसी कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी PTI के खिलाफ 9 मई समेत दीगर 5 केसेस की समाअत की। दौरान समाअत अडियाला जेल हुकाम ने शोकोज नोटिस का जवाब न दिया। अदालत ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी करते हुए समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम क़त्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज है। अपडेट करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला के नादरा सेंटर का दौरा किया और शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात के इजरा के अमल का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला ने सेंटर में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल बराह रास्त सुने। मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर के इंचार्ज को हिदायत की कि शहरियों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए और कोई शहरी इंतजार में ना रहे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नादरा सेंटर में आने वाला हर शहरी VIP है और शहरियों का काम उसी दिन मुकम्मल किया जाए। साथ ही तमाम दस्तावेजात मुकर्ररा मुद्दत में फराहम की जाएं ताकि आवाम को सहूलत मुयसर हो। ये दौरा शहरी सहूलत और नादरा की खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को 32 मुनहरिफ अरकान सिटी काउंसिल से लातौलीकी का बाज़ाब्ता ख़त इरसाल कर दिया। PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद की जानिब से भिजवाए गए ख़त में वाज़ेह किया गया कि मज़कूरा 32 अरकान की बुनियादी रुकनियत ख़त्म की जा चुकी है और इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। ख़त में कहा गया कि मुनहरिफ अरकान में असद अमान, सलाहुद्दीन असरार, अमजद अली, आसिम हैदर, असलम खान नियाजी, सनोबर फरहान, जुबैद मूसा, अब्दुल गनी, अजीज़ुल्लाह और फरहान खान समेत दीगर शामिल हैं। PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि सरकारी ख़त किताबत या अवामी सतह पर उन अरकान को तहरीक इंसाफ से ना जोड़ा जाए। ख़त के मुताबिक मुनहरिफ अरकान को कराची सिटी काउंसिल में आज़ाद मेंबर समझा जाए। तहरीक इंसाफ कराची की जानिब से कहा गया कि पार्टी ने हर किस्म की गलत फहमी से बचने के लिए ये वजाहती ख़त मेयर कराची को बाज़ाब्ता तौर पर इरसाल किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत घोटकी कंदकोट पुल मंसूबे की पेशरफ से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, वज़ीर वर्क्स एंड सर्विसेज अली हसन जरदारी, मुआविन खास सैयद कासिम नबी
नवीद, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अफसरान शरीक थे। इजलास में बताया गया कि पुल 12.15 किलोमीटर तवील होगा और PPP मोड पर तामील हो रहा है, जो 2028 में मुकम्मल होने की तवक्को है। मंसूबा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को जोड़ेगा और इलाकाई तरक्की और हम आहंगी में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि नवंबर के पहले हफ्ते से कॉन्ट्रैक्टर पुल पर दिन रात काम करें और 2026 के आखिर तक मंसूबा मुकम्मल किया जाए। इजलास में आगाह किया गया कि घोटकी की जानिब से 10.4 किलोमीटर और कंदकोट से 8.1 किलोमीटर सड़क पुल तक पहुँच चुकी है। जाड़ीवा, घोटकी फीडर कैनाल और तिब्बी माइंस पर पुल तामीर हो चुके हैं और 38 पाइप क्लोरेट्स मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अमन अमान की बेहतर सूरत हाल में पुल की तामीर तेज़ की जाए ताकि मंसूबे के फ़वाइद जल्द हासिल हों। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने रियाज में चेयरमैन पोलियो ओवरसाइट बोर्ड डॉक्टर क्रिस एलिस और WHO के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हनान बलखई से मुलाकात की। मुलाकात में पोलियो के खात्मे से मुतालिक इक़दामात, महमात और बैनुल-अक़वामी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में पुख्ता आज़म रखते हैं। पोलियो मुहिमात को मौसर बनाने और हाई रिस्क अज़ला पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। डॉक्टर क्रिस एलिस ने पोलियो के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा और भरपूर ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। कराची में केमिकल मिले दूध की फरोख्त पर मजीद 7 दुकानें सील कर दी गई हैं, जिसके बाद सील की गई दुकानों की तादाद 27 हो गई है। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी एलामी में बताया गया है कि मिलावट शुदा दूध के खिलाफ मुहिम जारी है। मुज़र सेहत दूध की फरोख्त पर मंगल को मजीद 7 दूध की दुकानें सील की गईं। 3 दुकानें जिला जनूबी, 3 शर्की और 1 मलीर में सील की गई है। तर्जुमान कमिश्नर कराची ने बताया कि 2 दिन में मजमूई तौर पर दूध की 27 दुकानें सील की गईं। कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में DG फूड अथॉरिटी और दीगर हुकाम शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि दूध को मेयार की चेकिंग और मिलावट के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। कमिश्नर कराची का कहना है कि दूध की दुकानों को भारी जुर्माने के बगैर डीसील नहीं किया जाएगा। दुकानों को मिलावट से पाक दूध फरोख्त करने की तहरीरी यकीन दहानी भी देना होगी। म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के केस में दरख्वास्त गुजार ने अदालत में इंकशाफ किया कि KMC शहरियों से टैक्स की मद में अब तक 2 अरब 64 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है। सिंध हाई कोर्ट में बिजली के बिल के जरिए म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया बिजली के बिलों में टैक्सेस से 2 अरब 64 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत सिर्फ सरकारी इदारे टैक्स जमा कर सकते हैं, कोई तीसरा फरीक रेवेन्यू जमा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि MUCT चार्जेस का निफाज सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2013 की खिलाफ वर्जी है। नेपरा भी के इलेक्ट्रिक से KMC टैक्स वसूली को खिलाफ कानून करार दे चुका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत के 29 मई 2024 के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। समाअत के दौरान KMC के वकील के मुआविन ने अदालत को बताया कि सीनियर वकील आज मौजूद नहीं, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सूबाई वज़ीर वर्क्स एंड सर्विसेज जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी से सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ मोहम्मद अली खान मिल्कानी ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, सूबाई तरक्याती मनसूबों, अजला में जारी कामों की रफ्तार और महकमों के दरमियान बेहतर हम आहंगी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर अब्दुल लतीफ़ मेमन भी मौजूद थे। दोनों वज़रा ने सूबे में तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील और अवामी सहूलियात में बेहतरी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया। सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत अवामी मफाद के मनसूबों को अवलीन तरजीह दे रही है। वर्क्स एंड सर्विसेज महकमा सड़कों, इमारतों और दीगर अवामी सहूलियात की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है ताकि अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सकें। सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली खान मिल्कानी ने इस मौके पर कहा कि लाइव स्टॉक और फिशरीज़ के शोबे सिंध की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनमें बेहतरी के लिए दीगर महकमों से करीबी ताउन नागुज़ीर है। बाद मुख्तलिफ शोबाए हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी से मुलाकात की और अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी कराई। सिंध हुकूमत ने सरकारी जामियात की तरक्याती स्कीमों के निफाज में ताख़ीर पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए फैसला किया कि जो जामियात अपने मनसूबे मुक़द्दरा वक्त में मुकम्मल नहीं करेंगी उन्हें नई स्कीमें नहीं दी जाएंगी। वज़ीर जामियात सिंध मोहम्मद इस्माइल गाहो की ज़ेर सदारत लाड़काना, सखर और मीरपुर खास की जामियात के वाइस चांसलर्स के साथ इजलास में जामियात की कारकर्दगी, तरक्याती मनसूबे और दरपेश मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वफाकी और सूबाई हिदायत के मुताबिक जामियात की कारकर्दगी को नए तरक्याती मनसूबों से मशरूत करने पर जोर
जोर दिया गया। इस मौके पर सिंध में तिब्बी तालीम और तहकीक के शोबे को फरोग देने के लिए नए इदारे और सेंटर्स कायम करने के फैसले भी किए गए, जिनमें लाड़काना में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सखर में नर्सिंग कॉलेज और द बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लाइब्रेरी, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ओशियन सेंटर और न्यूट्रिशन इनोवेशन सेंटर शामिल है। वीसी के मुताबिक लाइब्रेरी और नए सेंटर्स तलबा के लिए जदीद रिसर्च, मुतालिया और डिजिटल सहूलियात फराहम करेंगे, जबकि खवातीन को फूड साइंस और हेल्थ रिसर्च में तरबियत दी जाएगी। ये इक़दामात सूबे में तालीम, तहकीक और समाजी तरक्की के फरोग के लिए अहम संग मील साबित होंगे। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चलान निज़ाम के बाज़ाब्ता इफ्तिताह के बाद मजमूई तौर पर अब तक 4,500 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी हो चुके हैं। ट्रैफिक कवानीन की मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों पर ये चालान जारी किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मलिक ट्रैक्स के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, आइए उनसे मज़ीद जानते हैं। जी ज़ीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रैफिक पुलिस कराची की जानिब से जो फेसलेस ई टिकटिंग चलान का जो सिस्टम है वो उसका बाकायदा आगाज़ कल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कर दिया था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 2662 चालान जो हैं वो शहरियों के किए गए थे सेफ सिटी कैमराज और फेसलेस ई टिकटिंग निज़ाम के तहत, और 1.25 करोड़ रुपये से ज़ायद की जो रकम है वो बताई जा रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। आज भी जो शहरियों के ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जियों के हवाले से यहाँ पर कैमराज की मदद से डिजिटल चालान किए जा रहे हैं, उनकी टिकटिंग जो है वो की जा रही है। मेरा कैमरामैन मुहज़्ज़र से कहूँगा कि वो आपको दिखा सके कि किस तरह इन कैमराज की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो ट्रैफिक पुलिस जिद्दत की तरफ गामजन है। और शहरियों को जो अक्सर और बेशतर जो होता था कि ट्रैफिक पुलिस ने हमारे साथ ज़्यादती करी है, ट्रैफिक पुलिस ने नाजायज़ चालान काटा है, तो लेकिन अब जिद्दत और कैमरों को के थ्रू जो है वो चालान जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। कराची में शहरियों को उनकी चालान जो हैं वो तस्वीर के साथ उनकी दहलीज तक पहुँचाएंगे। DSP एडमिन काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं 4,500 से ज़ायद चालान कल से सिस्टम शुरू होने के बाद अब तक हो चुके हैं। शहरियों को कोई पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? काशिफ साहब ये बताइएगा, 4,500 से ज़ायद चालान जो है वो हो चुके हैं अब तक, और करोड़ों रुपए जो है वो शहरियों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, घरेलू बजट भी डिस्टर्ब हो जाएंगे बहुत सारे लोगों को, क्या कहेंगे? सर, हम तो काफ़ी अरसे से 3 महीने से आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये वायलेशंस जो है इनसे बचें, अपनी आदत चेंज करें। और ये छोटी छोटी वायलेशंस हैं, आपके लिए छोटी हैं लेकिन आपकी जान पे भारी हैं। मतलब आपको बता रहे हैं मोटरसाइकिल आप बगैर हेलमेट के ना चलाएं, वन वे वायलेशन ना करें, सिग्नल वायलेशन ना करें, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ना खड़े हों, बस की छत पे ना आप बैठें सारे। तो हम 3-4 महीने से ऑलरेडी आप सारे अवेयर हैं इस बात से, लेकिन हम तो आपको ई टिकटिंग के हवाले से मुस्तकिल हर चैनल पे, हर जगह, हर मीडिया पे बता रहे थे। अब कल से ये शुरू हो गया। 4,500 के करीब इस वक्त तक चालान जो है वो इशू हो चुके हैं, और ये आज शाम तक और कल दोपहर शाम तक आपके घरों पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आपको प्रिंट आउट की सूरत में आपके घर की दहलीज पे पहुंचेंगे। आप इसको देखें, इसमें आपका जो भी वॉयलेशन है वो सबूत के साथ दर्ज है, उसको पे करने के तरीक़ेकार दर्ज हैं और उसको चैलेंज करने के तरीक़ेकार दर्ज हैं। उस पर QR कोड लगा हुआ है, आप अपने मोबाइल से उसको स्कैन करेंगे तो उसकी कलर कॉपी आपके सामने आ जाएगी। तो बात सिर्फ यही है कि आप वायलेशन से बचें तो आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा। काशिफ साहब ये बताइएगा, DIG साहब ने कहा था और दीगर अफसरान ने भी कहा था कि इब्तदाई तौर पर इसको महदूद पैमाने पे जो है वो आगाज़ किया जा रहा है, साउथ जोन का बताया गया था हमें। ताहम आप बताइएगा कि क्या सिर्फ साउथ जोन तक महदूद है या ऑल ओवर कराची में ये इसकी रेंज है? नहीं, ये वो सर ने सही कहा था, लेकिन अब जैसे जैसे और दूसरे कैमरे हमारे सिस्टम में आते चले जा रहे हैं, अभी शारा फैसल भी हो गए, आपका डिफेंस भी है, इसी तरह ये मेन कुरंगी रोड है, आपका हसन स्क्वायर है, आपका डिस्को बेकरी वाला सिग्नल है, इसी तरह शारा पाकिस्तान है। तो ये सिस्टम फैलता जा रहा है, जैसे जैसे हमारे पास कैमरों की उसकी अप्रोच आती जा रही है, हमारे साथ इंटेग्रेटेड होते चले जा रहे हैं। तो ये सिस्टम, ये तो अल्टीमेटली अभी 1,076 कैमरों से शुरू हुआ है, ये तो 12,000 कैमरों पे जाना है। जी बिल्कुल, DSP एडमिन काशिफ नदीम साहब का यही कहना है कि 1,076 कैमरे जो हैं वो इस टाइम तक फंक्शनल हो चुके हैं। शहरियों को यही नसीहत करेंगे कि ट्रैफिक रूल्स की जो वायलेशन है, जो वो खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, उनसे वो गुरेज करें, नहीं तो उनका घरेलू बजट भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। जी।
कराची में कमिश्नर के अहकामात के तहत हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर 18 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2025 तक पाबंदी आयद कर दी गई है। रात 10 बजे से बिल्कुल, सुबह इस 6 वक्त बजे मैं तक मौजूद डंपर्स और दीगर हैवी गाड़ियां शहर में नहीं चल सकेंगी। ट्रैक्स, अशिया ट्रैफिक जरूरिया ले जाने वाली गाड़ियां इस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। तामीराती मटीरियल वाले डंपर्स को इजाजत नहीं होगी। हैवी ट्रैफिक के लिए सिर्फ 3 मखसूस रास्ते खुले रहेंगे। सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, नेशनल हाईवे से गोदाम चौरंगी, दाऊद चौरंगी, जाम सादिक ब्रिज और नॉर्दर्न बाईपास से गुलबाई, माड़ीपुर रोड, जिन्ना ब्रिज, कराची पोर्ट तक हैवी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुमकिन होगी। इंडस्ट्रियल जोन्स में ट्रैकर नस्ब डंपर्स को नरमी हासिल होगी। ये इकदाम शहरी ट्रैफिक की रवानी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया है।